गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एडुसेट प्रसारण के बायोलॉजी के प्रैक्टिकल नंबर 3 में। इस प्रैक्टिकल में हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस प्रकार से मोनोकोट और डाइकोट रूट की स्लाइड तैयार की जाए और किस प्रकार से उनकी स्टडी की जाए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी हो सकती हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स प्यारे विद्यार्थियों हो सकती हैं सैंपल्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट रूट। आपके सामने स्क्रीन पे प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज डाइकोट रूट, दिस इज मोनोकोट रूट। दोनों रूट्स के सैंपल्स जिनसे हमें सेक्शन काटना है, सेक्शन को स्टेन करना है और उनकी स्लाइड हमें तैयार करनी है। शार्प ब्लेड with which we can cut the sections. A potato to make cavity even can be used for the roots whose diameter is very thin. Watch glasses even are used to keep the sections as well as to stain the sections. Plane slides to prepare to view the we can say cut sections. Then cover slips which are kept here. Glycerine for the temporary mount. Saffron in solution या stain for staining the tissue. That is a differential kind of stain. Forceps, needles, brushes, etc. are also used in that particular type of practical. अब प्रोसीजर प्यारे विद्यार्थियों हम क्या फॉलो करते हैं? टेक ए पीस ऑफ मोनोकोट रूट। हमने इसका एक पीस निकाला। कट thin section as much as possible with the help of the blade. प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन कटिंग के लिए मैंने बताया पोटैटो इवन कैन बी यूज्ड टू मेक कैविटी, ताकि पूरा सेक्शन, कंप्लीट सेक्शन आप पोटैटो में रख के काट सकें। Now transfer these sections with the help of brush inside the watch glass containing water. Similarly, cut the sections, thin sections of dicoat root by taking a sample. You can take a sample like that and cut a thin section as much as possible with the help of blade or section cutting razor. Potato cavity again can be used for the accuracy of work as well as to avoid the blade injury. Now transfer these sections, thin sections, with the help of brush in a separate watch glass containing pure water. Now transfer the sections, thin sections, selected sections in separate watch glasses. This is of dicoat root and this is of monocoat root. These sections can be transferred in another watch glass with the help of brush.
Now add 1 or 2 drops of safranin solution to both the watch glasses containing selected sections. After few minutes, the stained sections are to be transferred in the separate watch glasses containing pure water to wash excess of stain. Now transfer the stained sections in the watch glass containing pure water to wash excess of stain. This is of monocoat root and now of dicoat root. Take one section, the thinnest section, complete transfer section on a clean glass slide of monocoat root, now of dicoat root. Put a drop of glycerine with the help of dropper over the slides having the section of monocoat and dicoat roots. Now place the cover slips gently over both the slides with the help of needle so that air bubbles can be avoided. Now tap the slide a little. Another cover slip on the section of a dicoat root. Now these are prepared slides. Precautions, what are to be taken for preparation of these slides? प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने स्क्रीन पे हैं. The blade used must be sharp and should be free from nicks. जो ब्लेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शार्प होनी चाहिए और उसके अंदर कोई निक नहीं होना चाहिए, यानी दैट शुडंट बी द ब्लंट जो हिंड्रेंस पैदा करे इन सेक्शन कटिंग. यूज ओनली ब्रश फॉर ट्रांसफर ऑफ द सेक्शंस. ये हमने देखा कि हमने जितनी बार भी जो सेक्शंस ट्रांसफ़र किए हैं उन्हें ब्रश इस्तेमाल की है. ओवर स्ट्रेनिंग एंड अंडर स्ट्रेनिंग शुड बी अवॉइडेड, यानी वी शुडंट लीव द सेक्शंस for a long time in the stain so that we can avoid the overstraining, as well as we can wash the sections in water if overstraining is there. We should also put the sections for an appropriate period so that staining occurs in them. Always keep the cover slip gently to avoid air bubbles on the slide. Air bubble slide पे ना आए, उसको avoid करने के लिए बहुत धीरे से कवर स्लिप को सेक्शन के ऊपर रखना है. नो एक्स्ट्रा स्टेन एंड ग्लिसरीन शुड कम आउट ऑफ द स्लाइड. अगर एक्स्ट्रा ग्लिसरीन और स्टेन बाहर आ जाता है तो वो टिश्यू पेपर के द्वारा या फिल्टर पेपर के द्वारा साफ कर देना चाहिए. नाउ बिफोर ऑब्जर्विंग दीज स्लाइड्स अंडर माइक्रोस्कोप वी कैन डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीएस मोनोकोट रूट एंड डाइकोट रूट. तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहले टीएस डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर. इसमें पहला स्ट्रक्चर है इपीब्लेमा और फिलीफिरस लेयर. इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स. इट बियर्स यूनिसेलुलर रूट हेयर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स
क्यूटिकल इज एब्सेंट, क्यूटिकल यहाँ प्रेजेंट नहीं होती है रूट्स में। दूसरा स्ट्रक्चर प्यारे विद्यार्थियों है कोर्टेक्स। इट इज मैनी लेयर्ड एंड मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ये बहुत सारी लेयर्स इसकी कोर्टेक्स की प्रेजेंट होती हैं और ये पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। प्रेजेंट बिलो इपीब्लेमा, इपीब्लेमा मीन्स जो बाहरी लेयर है उस लेयर से अंदर कोर्टेक्स होता है। देन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाया गया है जो स्कीमेटिक डायग्राम है डाइकोट रूट के सेक्शन का। इसमें सबसे बाहर स्मॉल हेयर्स आर विजिबल, जिन्हें हम रूट हेयर्स कह सकते हैं। ये सिंगल सेल्ड हैं, एक सेल के बने हुए हैं, यानी जो सेल्स इपीडर्मिस पे प्रेजेंट हैं, एपिब्लेमा पे प्रेजेंट हैं, वो बल्ज कर जाती हैं, बाहर की तरफ आउटग्रो कर जाती हैं और रूट हेयर का काम करती हैं। उसके बाद है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने है, एक बिग रीजन जो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना है। उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से अंदर फ्लोएम एंड जाइलम विच आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटली इन ए रिंग, रिंग में ऑल्टरनेटली वो अरेंज्ड हैं। नेक्स्ट डायग्राम प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने है, ये वैस्कुलर टिश्यूज को शो कर रहा है और इस वैस्कुलर टिश्यू में यानी वैस्कुलर बंडल ये शो कर रहा है जो बिल्कुल बीच में है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बाहर है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर आप देख रहे हैं पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद आप देख रहे हैं फ्लोएम और जाइलम जो अल्टरनेटली अरेंज्ड हैं। जाइलम कुछ इस प्रकार से हैं कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हैं और मेटाजाइलम अंदर की तरफ हैं, यानी इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सार्च। और क्योंकि कैम्बियम नहीं है तो ओपन वैस्कुलर बंडल्स हम कह सकते हैं रूट के अंदर प्रेजेंट हैं। 4 वैस्कुलर बंडल हमें नजर आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, 4 फ्लोएम और 4 जाइलम इस डायग्राम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इसके अंदर 2 to 6 होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्यारे विद्यार्थियों एंडोडर्मिस। इट इज सिंगल लेयर दैट सेपरेट्स द कोर्टेक्स फ्रॉम वैस्कुलर बंडल्स, जो कोर्टेक्स को वैस्कुलर बंडल से सेपरेट करती है, अलग करती है। इट हैज बैरल शेप्ड सेल्स, मॉडल के थ्रू हम क्लियर कर सकते हैं कि इसके अंदर बैरल शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पेरिसाइकिल, अनदर लेयर इनर टू द एंडोडर्मिस, जो एंडोडर्मिस से भी अंदर है, मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल्स। एक ही लेयर है, एंडोडर्मिस से अंदर है। वैस्कुलर बंडल्स नाउ जो अंदर प्रेजेंट हैं, इनर साइड हैं, रेडियल अरेंजमेंट उनका है, दे आर रेडियल इन अरेंजमेंट एज जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड सेपरेटली, वो सेपरेट हैं, ऑल्टरनेट हैं। द नंबर इज 2 to 6, जो नंबर है जाइलम और फ्लोएम का वो 2 से 6 है, यानी टेट्रार्च टू हेक्सार्च कंडीशन। द जाइलम कंटेन्स प्रोटोजाइलम वेसल्स टुवर्ड्स द पेरिफ्री, यानी जो स्मॉलर जाइलम्स हैं या न्यूली फॉर्म्ड जाइलम्स हैं, दोज आर प्रेजेंट ऑन आउटर साइड। और मेटाजाइलम जो हैं वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट हैं। तो प्रोटोजाइलम की कंडीशन को देखते हुए द कंडीशन इज एक्सार्च। इसे पहले हमने स्टेम्स में देखा था, कंडीशन वाज एंडार्च, बट हियर इज एक्सार्च। नेक्स्ट वी कैन टेक कंजक्टिव टिश्यूज। पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यूज। पैरेन्काइमेटस सेल्स वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम कंजक्टिव टिश्यूज कह सकते हैं। नेक्स्ट पिथ प्यारे विद्यार्थियों जो सेंट्रल है, it constitutes the central part of the root and made up of parenchymatous cells. It is either poorly present या poorly developed we can say or absent, या तो बहुत कम डेवलप्ड होगी डाइकोट रूट में या बिल्कुल एब्सेंट होगी। नाउ with the help of the model we can clarify the transverse section of dicot root. प्यारे विद्यार्थियों आप देख रहे हैं, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्क्वेरी सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिन्हें इपीडर्मिस कहते हैं। इपीडर्मिस की ही कुछ सेल्स बाहर की तरफ ग्रो कर जाती हैं, इनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। बहुत इसेंशियल पार्ट्स हैं। किसके लिए इसेंशियल हैं? ये पार्ट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल के लिए इसेंशियल हैं। देन
प्यारे विद्यार्थियों, लॉन्ग कोर्टेक्स यू कैन सी, पैरेन्काइमा सेल्स की कोर्टेक्स आपके सामने नजर आ रही है मॉडल में। देन देयर इज एंडोडर्मिस, ए लेयर that is separating the vascular tissues from cortex. Then another layer you can see, जो yellow layer है उसके अंदर एक pink layer है, and that layer is pericycle, वो pericycle है। उसके बाद phloem, xylem, phloem, xylem, phloem, xylem, phloem, यानी 4 phloem and 4 xylem बंडल्स आर अपीयर टू बी प्रेजेंट हेयर। ये टेट्रार्च कंडीशन है और इसके अंदर आप देख रहे हैं जाइलम, स्मॉलर जाइलम, प्रोटोजाइलम आर प्रेजेंट ऑन आउटर साइड, बिगर जाइलम आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर। सो दिस इज द एक्सार्च कंडीशन। देख सकते हैं कि कुछ ग्राउंड टिश्यूज इवन आर प्रेजेंट इन बिटवीन, जिन्हें कंजक्टिव टिश्यूज कहा जा सकता है। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पैरेन्काइमा के बने कुछ कंजक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट हैं। एंड दिस इज द सेंट्रल मोस्ट पार्ट या सेंट्रल पार्ट, दैट इज द पिथ, जो या तो पुअरली डेवलप्ड होगी या फिर बहुत कम होगी डाइकोट रूट के अंदर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी कैन टेक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट के अंदर भी उसी प्रकार से सबसे पहले इपीब्लेमा, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, स्क्वेरिस जो साइज में है, और बियर्स यूनिसेलुलर रूट हेयर्स ओवर इट, इसके ऊपर भी यूनिसेलुलर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कोर्टेक्स, इट इज मैनी लेयर्ड मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट बिलो इपीब्लेमा। इपीब्लेमा के लिए नीचे बहुत सारी सेल्स की कंपैरेटिवली डाइकोट से कम है लेयर्स, लेकिन कोर्टेक्स अगेन रिमार्केबल इन मोनोकोट रूट्स इवन। डायग्राम आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, दिखाया हुआ है सबसे बाहर इपीब्लेमा, इपीब्लेमा पे रूट हेयर्स भी नजर आ रहे हैं, देन कोर्टेक्स, उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स, और वेस्कुलर बंडल्स यहां भी रेडियल अरेंजमेंट में हैं। ऑल्टरनेटली जाइलम एंड फ्लोएम आर अपीयर्ड टू बी प्रेजेंट हेयर, यहां दिखाई दे रहे हैं। और सेंट्रल पार्ट जो है डायग्राम का वो पिथ है, और लार्ज पिथ कंपैरेटिवली इज देयर इन मोनोकोट रूट देन डाइकोट रूट। डाइकोट रूट से ज़्यादा बड़ी पिथ अपीयर हो रही है, दिख रही है डायग्राम में इन मोनोकोट रूट। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एंडोडर्मिस। इट इज द सिंगल सर्कुलर लेयर मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स दैट लिमिट्स कोर्टेक्स, जो कोर्टेक्स की अंदर वाली लिमिट को डिटरमाइन करती है, डिसाइड करती है। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन देम, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। पेरिसाइकल, इट इज ऑल्सो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट बिलो एंडोडर्मिस। जैसा डाइकोट रूट्स के अंदर पेरिसाइकल थी, पेरिसाइकल इज प्रेजेंट हेयर इन मोनोकोट रूट ऑल्सो। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स की जो संख्या है वो डाइकोट रूट से ज्यादा है, और वेस्कुलर बंडल्स यहां भी रेडियल अरेंजमेंट में हैं। दे आर अरेंज्ड इन ए रिंग, और रिंग्स की संख्या यहां 8 से 16 हो सकती है। ईच वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ sclerenchymatous sheath. As far as xylem is concerned, you can see smaller xylem are present on outer side, bigger xylem are present on inner side. तो अगेन हम कह सकते हैं कंडीशन जो है वो है एक्सार्च कंडीशन, रिमार्केबल पिथ, कंपैरेटिवली मोर पिथ देन दैट ऑफ द डाइकोट रूट। मोनोकोट रूट प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं ट्रांसफर सेक्शन मॉडल की सहायता से। इसके अंदर सबसे बाहर नजर आ रहे हैं रूट हेयर्स, जो आउटग्रोथ्स हैं सम ऑफ द सेल्स ऑफ द इपीब्लेमा इटसेल्फ। दिस इज इपीब्लेमा, द स्क्वेरिस सेल्स, और इन्हीं के आउटग्रोथ होती हैं रूट हेयर्स। देन देयर इज हाइपोडर्मिस, देन ए लॉन्ग कोर्टेक्स, काफी लंबी कोर्टेक्स इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमा सेल्स की, प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं। देन देयर इज एंडोडर्मिस, दिस येलोइश लेयर appear to be present in the model, or that is of the
एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस कोर्टेक्स को वेस्कुलर बंडल से अलग करता है। उसके बाद उससे भी अंदर एक लेयर है जिसे पेरिसाइकिल कहते हैं, वो भी एक कंप्लीट लेयर है। चारों तरफ आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने मॉडल के अंदर हैं। देन वेस्कुलर बंडल्स, और दोज आर प्रेजेंट इन ए रिंग। दिस इज फ्लोएम, देन जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, like that. So these are arranged in a ring. As far as xylem is concerned, you can see smaller xylem are present on outer side, bigger xylem are present on inner side. तो अगेन हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कंडीशन जो है वो है एक्सार्च कंडीशन। एक्सार्च कंडीशन जहां प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, दैट इज द एक्सार्च कंडीशन। पिथ आप देख रहे हैं सेंटर में, रिमार्केबल पिथ, कंपैरेटिवली मोर पिथ देन दैट ऑफ द डाइकोट रूट, आपके स्क्रीन पे मॉडल के अंदर नजर आ रही हैं। हम डिस्कस कर सकते हैं या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं जो स्लाइड्स हमने प्रिपेयर की हैं थ्रू द प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप। प्यारे विद्यार्थियों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने का केवल एक ही मकसद है कि जो स्लाइड हमने प्रिपेयर की है उस स्लाइड को हम आप तक पहुंचा सकें, और फॉर दैट पर्पस वी हैव यूज्ड द प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप। तो प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप में सबसे पहले मैं ले रहा हूं डाइकोट रूट। प्यारे विद्यार्थियों, अगर डाइकोट रूट का देखें तो हेक्सार्च कंडीशन इस सैंपल में हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें सेंटर में हम देख रहे हैं जो वेस्कुलर बंडल्स हैं जाइलम और फ्लोएम रेडियली प्रेजेंट हैं, और 6 डायरेक्शंस हमें नज़र आ रही हैं। दोज डायरेक्शंस आर शोइंग कि हेक्सार्च कंडीशन, यानी 6 जाइलम बंडल्स और 6 फ्लोएम बंडल्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेक्शन। सो दिस इज द डाइकोट रूट, दिस इज द सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट। स्क्रीन पे प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप का जो पिक्चर आपके सामने नज़र आ रहा है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड ट्रांसफर सेक्शन टेम्परेरी स्लाइड मोनोकोट रूट की है, और इसके अंदर बिल्कुल डिस्टिंक्ट बाहरी रूप से इपीब्लेमा, उसके बाद कोर्टेक्स काफ़ी लंबी नज़र आ रही है पैरेन्काइमेटस सेल्स की। देन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल में तो हो सकता है ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन ना हो, लेकिन एंडोडर्मिस इज क्वाइट डिस्टिंक्ट, अपीयर्ड क्लियरली। देन वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स जो हैं जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटली प्रेजेंट हैं, और क्योंकि वो ऑल्टरनेटली प्रेजेंट हैं, एक रेडियस में प्रेजेंट हैं, रेडियल बंडल्स हम कह सकते हैं। और जाइलम भी लगभग क्लियर है, प्रोटोजाइलम ऑन आउटर साइड, मेटाजाइलम ऑन इनर साइड, और सेंटर में रिमार्केबल पिथ यानी काफ़ी बड़ी पिथ नज़र आ रही है मोनोकोट रूट के अंदर। कुछ क्वेश्चंस बिफोर एंड हम डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन डाइकोट एंड मोनोकोट रूट्स? हमने देखा वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट रेडियली, और क्योंकि उनके अंदर कैम्बियम नहीं है तो ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल्स हैं। हमने देखा कि जाइलम एज फार एज कंसर्न्ड, प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट ऑन आउटर साइड, मेटाजाइलम इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड, तो कंडीशन यहाँ एक्सार्च है। डाइकोट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो 2 से 8 तक हैं, यानी डाई आर्च टू ऑक्टार्च कंडीशन यहाँ प्रेजेंट होती है डाइकोट्स में, और मोनोकोट्स में जो संख्या है वो 8 से ज़्यादा है, 16 तक इसकी संख्या हो सकती है, दैट इज़ इन मोनोकोट्स। उसके बाद एक और क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों उठ सकता है, पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पिथ इन मोनोकोट एंड डाइकोट रूट? ये हमने बिल्कुल क्लियरली देखा कि जो पिथ है मोनोकोट रूट्स में वो रिमार्केबल है, काफ़ी बड़ी है, जबकि डाइकोट रूट्स की जो पिथ है वो कंपैरेटिवली स्मॉल है, स्केंटी है, या बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी केस में वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, और भी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आ सकते हैं, जैसे डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट रूट ट्रांसफर सेक्शंस एज ए होल,
तो वो भी पूछा जा सकता है, तो उसका भी आप जवाब पूरी डेमोन्स्ट्रेशन को देख के दे सकते हैं। ये पूरी डेमोन्स्ट्रेशन देख करके मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी स्कूल कंडीशंस में इस एक्सपेरिमेंट को दोहराएंगे अपने कंसर्न्ड बायो लेक्चरर के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।